انتخابی دنگل سجنے کو تیار، 8 فروری کو ووٹرز حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن اور انتظامیہ نے تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ بعد میں الیکشن میٹیریل کی حفاظت کے لیے پولیس اہلکار تعینات، 33 ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں 4 پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ پولنگ سامان کی حفاظت کے لیے 2 اہلکار شفٹوں میں فرائض سر انجام دیں گے۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ڈویژنل ایس پیز ہوں گے۔ سرکل ڈی ایس پیز، ریٹرننگ افسران دفاتر کی سیکیورٹی انچارج مقرر۔ ریٹرننگ افسران دفاتر کی سیکیورٹی آج سے تا حکم ثانی جاری رہے گی۔ سی پی او محمد علی ضیاء نے سیکیورٹی ڈیوٹی کی منظوری دے دی۔ ڈی پی او جنگ محمد راشد ہدایت کا پولنگ سامان کی سیکیورٹی کے لیے قائم اسٹرانگ روم کا دورہ، ڈیوٹی پر معمور پولیس افسران کی چیکنگ، ڈی پی او کی اہلکاروں کو فرائض مستعدی سے انجام دینے کی ہدایت۔ بولے، امن و امان سبوٹاج کرنے والے شر پسند عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون یقین بنایا جائے گا۔ عام انتخابات 2024 کے لیے سیکیورٹی انتظامات، چنیوٹ میں سرکاری ملازمین کو بطور پولیس معاون تعینات کرنے کا فیصلہ، 700 سرکاری ملازمین کو 1 روزہ ٹریننگ کے بعد تعینات کیا جائے گا۔ آرمی اور رینجرز کے 1000 اہلکار بھی فرائض سر انجام دیں گے۔ عام انتخابات کے دوران 6000 سے زائد پولنگ تعینات کیا جائے گا۔ توبہ ٹیکسنگ میں عام انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم، ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے ڈی پی او عبادت نثار اور کرنل سبحانی کے ہمراہ کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ انچارج کنٹرول روم نے صوبائی اور قومی حلقوں کی جیو ٹیکنگ اور دیگر انتظامات بارے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کی سرگرمیوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، پرامن و شفاف انتخابات کے لیے مکمل معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیوٹی سے غیر حاضر ملازمین کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ توبہ میں پولنگ اسٹیشن قائم کرنے کے لیے اسکول اور کالج کی عمارات کا انتخاب کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کو پولنگ اسٹیشن سے متعلق تفصیلات فراہم۔ 925 پولنگ اسٹیشن پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول میں بنائے جائیں گے۔ ضلع میں پولنگ اسٹیشن کے لیے 6 سرکاری کالجز کو بھی منتخب کیا گیا ہے۔ میونسپل کمیٹی کے 2 اور یونین کونسلز کے 3 دفاتر میں بھی پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم نے اسکول اور کالج سربراہان کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ عام انتخابات میں چند روز باقی، فیصل آباد پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ سیکیورٹی انتظامات کے لیے مجموعی طور پر 17,144 اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ عام انتخابات کے لیے فیصل آباد پولیس نے سیکورٹی انتظامات مکمل کر لیے۔ ایس ایس پی آپریشن حسن جاوید بٹی الیکشن کی مجموعی سیکورٹی کو سپروائز کریں گے۔ 3687 پولنگ اسٹیشن اور پٹرولنگ کے لیے مجموعی طور پر 17,144 نفری تعینات ہوگی۔ فیصل آباد کے 475 پولیس اسٹیشن انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ عام انتخابات میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے آرمی، رینجرز، پولیس یونٹس، رضاکار اور دیگر حساس اداروں کے اہلکار بھی فرائض سر انجام دیں گے۔ ضلع بھر کو زون، سیکٹرز، سب سیکٹرز اور کلسٹرز میں تقسیم کیا گیا۔ الیکشن پر لڑائی جھگڑے کے ریکارڈ یافتہ افراد سے شورٹی بانڈز لیے گئے۔ ایس ایس پی آپریشن حسن جاوید بٹی کا کہنا تھا الیکشن کے دوران فول پروف سیکورٹی فراہم کریں گے۔ فیصل آباد میں 10 نیشنل اسمبلی اور 21 جو ہیں پروونشل اسمبلیز کے حلقے ہیں، اور اس کے ٹوٹل جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ 3687 ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارا فارمولا آئی جی آفس سے ہے، ہائیلی سینسٹیو پہ 5 بندے، سینسٹیو پہ 4 اور نارمل پہ 3 بندے لگائے جا رہے ہیں، جس میں پولیس اور جو ادر یونٹس ہیں ادھر سے بھی ہمیں نفری ملی ہے ان کو، اور باقی کچھ لوگ جو ہیں رضاکارانہ طور پر بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ پولیس حکام کے مطابق دوسرے یونٹ سے آنے والی نفری 4 فروری کو فیصل آباد رپورٹ کرے گی۔ کیمرہ مین عرفان ملک کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41، فیصل آباد۔ سردی کی لمبی راتیں، طویل ملاقاتیں، سیاسی باتیں، دن بھر جلسے، جلوس، ریلیاں۔ امیدواروں کی ووٹوں کے لیے اپیلیں، ووٹروں کی شکایتیں، ڈویژن بھر میں امیدوار انتخابی مہم کو فائنل ٹچ دینے میں مگن۔ نون لیگی امیدوار پی پی 117 خواجہ رضوان کی ڈور ٹو ڈور مہم، جھنگ روڈ لکڑ منڈی کا دورہ، دکانداروں کا خواجہ رضوان کی حمایت کا اعلان۔ خواجہ رضوان کے نڑووالا میں مرزا طارق شہزاد محمود کے فرنیچر شو روم پر آمد، این اے 103 اکرم انصاری بھی ہمراہ تھے۔ جھنگ روڈ پر شیخ گڈز والے شیخ شوکت کی دعوت پر کارنر میٹنگ، گنڈا سنگھ میں جلسہ، لیگی کارکنوں اور عہدیداروں کی شرکت۔ مسلم لیگ نون کے سرگرم امیدوار خواجہ رضوان کے میل ملاقاتیں، امیدوار پی پی 117 خواجہ رضوان کا یونین کونسل 131 میں حمید پارک میں جلسہ، لیگی کارکنوں اور عہدیداروں کی شرکت۔ خواجہ رضوان کی 8 فروری کو شیر پر ٹھپا لگانے کی اپیل، امیدوار این اے 103 اکرم انصاری نے بھی خطاب کیا۔ توبہ میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی انتخابی مہم، کارنر میٹنگز اور جلسوں کا انعقاد۔ این اے 106 میں بڑے بڑے دھڑے جنید انور چودھری کی حمایت کرنے لگے، پی پی 121 میں امجد علی جاوید کو بھی حمایت ملنے لگی۔
आजाद उम्मीदवार NA99 मलिक उमर फारूक के लिए बड़ी कामयाबी। हरीफ उम्मीदवार आदिल रफी चीमा इलेक्शन से दस्तबरदार। आदिल रफी ने मलिक उमर की हिमायत का ऐलान कर दिया। सियासी हलकों में हिमायत करने का सिलसिला जारी। चक झुमरा के गांव खानके में चीमा बरादरी ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना फराज अनीस की हिमायत का ऐलान कर दिया। राना फराज अनीस बोले, इलाके की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। PP 110 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मास्टर इशफाक अहमद की डोर टू डोर कैंपेन। गुलाम मोहम्मद आबाद में डेरा चौधरी बूटा जट आमद मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात की। कहा, तीर जीत का निशान है। नूरपुर में घर घर जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम पहुंचाया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार राना सिकंदर आजम सरगर्म NA 104 के इलाके हजवेरी टाउन में कॉर्नर मीटिंग। राना सिकंदर आजम ने 350 यूनिट फ्री बिजली मंशूर का हिस्सा बना लिया। बोले, हल्के के आवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब हूँ। झंग के PP 127 में बड़ा मुकाबला। लीगी उम्मीदवार राशिदा याकूब शेख ने तैयारी मुकम्मल कर ली। हल्के के आवाम से हिमायत मिलने लगी। राशिदा याकूब की पब्लिक सेक्टर में वोटर्स से मुलाकातें। NA 109 में शेख मोहम्मद याकूब ने भी मैदान संभाल लिया। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। जंग ही में मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी की इंतखाबी मुहिम जारी। उम्मीदवार NA 109 और PP 127 मौलाना अहमद लुधियानवी पब्लिक सेक्रेटेरिएट पहुंचे तो वोटर्स ने भरपूर इस्तकबाल किया। अड्डा हसन शाह और बस्ती माई हीर में भी खुश पजीराई, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। तांदनियावाला में सहगाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार NA 97 हमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम जारी। मुख्तलिफ बरादरियों का हमायूं अख्तर की हिमायत का ऐलान। उम्मीदवार PP 103 राना नईम इकबाल और PP 100 सरदार सिकंदर हयात जतोई भी सरगर्म। हमायूं अख्तर ने हमरा मोहल्ला मुबारकपुर का दौरा किया। फैसलाबाद के हल्का NA 100 से राना सनाउल्लाह और PP 116 से राना अहमद शहरियार की इंतखाबी मुहिम जारी। राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ चकूक और शहरियार ने घंटा घर रेल बाजार में ताजरों से खिताब किया। राना सनाउल्लाह की अपने हल्के NA 100 में इंतखाबी मुहिम। राना सनाउल्लाह खान की समनाबाद कॉलेज रोड पर कॉर्नर मीटिंग। इन्होंने 29 चक 59 चक नथू और 60 जीम्बे शहबाजपुर में जलसा से खिताब किया। राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि आप सब ने 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाना है। 2 फरवरी को धोबीघाट में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल करेंगे। हर हल्के में जो है वो भरपूर तैयारियां हो रही हैं और 2 फरवरी को जुमातुल मुबारक दिन 2 बजे इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा तशरीफ़ ला रहे हैं और धोबी घाट की ग्राउंड में जो है वो फैसलाबाद की तारीख में सबसे बड़ा जलसा होगा। उसके लिए तमाम हलकों में तमाम हमारे MNA MP टिकट होल्डर तैयारियां कर रहे हैं। PP 116 में राना अहमद शहरियार की भरपूर कैंपेन। घंटाघर रेल बाजार में ताजर रहनुमा अमीन भट्ट अब्बास हैदर शेख ने राना अहमद शहरियार का इस्तकबाल किया। राना अहमद शहरियार ने ताजरों के मसाइल सुने। इन्होंने खिताब में कहा कि गुज़श्ता 5 साल में ताजरों के कारोबार तबाह हो गए। इलेक्शन में फतहयाब होकर सबसे पहले ताजरों के मसाइल हल करेंगे। राना सनाउल्लाह खान साहब की खिदमत इस शहर के लिए सर आ रहे हैं, तो मैं शुक्र ही अदा करता हूँ खुदा ताला की ज़ात का कि वो अपने आने वाले कल को सिक्योर कर रहे हैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं ताजरान इस टाइम उनको इतने मसाइल का शिकार कर दिया गया है कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। जलसों और कॉर्नर मीटिंग में नून लीगी कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। कैमरामैन उस्मान ताज और साथी रिपोर्टर फसी नकवी के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की जमानत की दरख्वास्त खारिज। फैसलाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की। हसास इदारों पर हमले का मामला। खसूसी अदालत ने NA 100 से डॉक्टर निसार जट और साबिक MPA लतीफ नजर गुजर की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। मुलजिमों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज था। दरखास्त जमानत अदम पैरवी की बिना पर इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने खारिज की। महंगाई की लहर का शिकार अवाम फिक्स चार्जेस से परेशान। चिन्योट में सुई गैस बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ ताजर और मजदूरों का एहतजाज। अंजुमन ताजरान चिन्योट का सुई गैस बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ एहतजाज। जमील फखरी जिले सदर अंजुमन ताजरान ने कहा कि मुतवस्सित तबका परेशान हाल है। लोग खुदकशियों पर मजबूर हो चुके हैं। अवाम हमारे पास आते हैं, सियासतदान बताएं हम इनको क्या जवाब दें। हुकूमत से अपील है कि टैक्सों में रिलीफ दे। अवाम परेशान है और ख़ास तौर पे मुतवस्सित तबका इंतहाई परेशानी की हालत में अपने शब रोज़ गुजार रहा है। इस हालत में हुकूमत वक्त ने गरीब आदमी को 2000 रुपये का 1000 रुपये का फ़िक्स टैक्स लगा दिया है गैस पर और बिजली के जो टैक्सेस हैं। जो हालात बनी पड़ी है, लोग सड़कों पर आए, क्या करें, वोट दें,
सेलेक्ट करें, किसी को रिजेक्ट करें, करें क्या? मजदूरों का कहना था कि हजारों रुपए के फिक्स टैक्स से बिलों में होशरुबाई इजाफा हुआ है। इलेक्शन सर पर हैं, किसी को गरीब की फिक्र नहीं। किसी सियासी जमात ने यूटिलिटी बिलों में कमी का मंशूर नहीं दिया। मुजाहरीन की दुहाइयां। तो 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए बिल आता था, अब अंदाजा नहीं है। अब जो 500-600 वाला बिल था, अब 5300-6300 बिल आ जाते हैं। अब क्या करें, हर को सरवाइव तो करना ही है ना। सुई गैस के महंगे बिल अवाम पर कहर बन के टूट पड़े। शहरी कहते हैं कि पहले जो बिल 500 आता था, अब 5000 आ रहा है। गरीब पहले ही 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा। फिक्स चार्जेस का फौरी खात्मा करके रिलीफ दिया जाए। मुजाहरीन ने कहा कि गैस आती नहीं, ना कोई रिलीफ मिलता है, मगर हर बार नए टैक्स में इजाफा कर दिया जाता है। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गोमन, सिटी 41 चिन्योट। आम इंतखाबात तरक्याती कामों का पहिया रुक गया। फंड्स मुंजमद होने से वासा के तामीराती काम लटक गए। गुलिस्तान कॉलोनी और गई डिस्पोजल पर तामीराती काम एक बार फिर तारीखी का शिकार। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी फैसलाबाद के तमीराती प्रोजेक्ट्स के आड़े आ गई। फंड्स मुंजमद होने से वासा के तरक्याती काम एक बार फिर रुक गए। गुज़िश्ता माह 22 तारीख को वासा के जारी तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी किए गए थे। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाबंदी के बाद फंड्स मुंजमद हो गए। गट्टी डिस्पोजल, गुलिस्तान कॉलोनी, वासा डिस्पोजल पर काम बंद हो गया। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर गट्टी टैंकी वाली ग्राउंड में साफ पानी के टैंक बनाने का मंसूबा भी बुनियादों से आगे न बढ़ सका। वासा के 4 मेन चैनल के अतराफ 23,000 फुट दीवार की तामीर का मंसूबा भी ठप हो गया। वासा हुकाम के मुताबिक इलेक्शन के बाद फंड्स दोबारा रिलीज होने पर तामीराती काम का आगाज हो सकेगा। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। सेहतमंद टीबी जैसे मूजी मरज की एक बार फिर यलगार। सालाना रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। फैसलाबाद में एक साल में 15,879 मरीज टीबी का शिकार, 45 मरीजों में एड्स की निशानदही। फैसलाबाद में टीबी का मर्ज तशवीशनाक हालत तक बढ़ गया। साल 2023 में 54,949 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। 15,879 मरीजों में टीबी की तस्दीक हुई। टीबी के मुस्बत मरीजों में से 45 मरीज HIV का भी शिकार निकले। डिस्ट्रिक्ट टीबी इंतजामिया ने साल 2023 की टीबी रिपोर्ट जारी कर दी। टोटल 2023 में हमने 55,000 लोगों की स्क्रीनिंग की है, जिसमें से राउंड अबाउट 16,000 मरीज हमने पॉजिटिव निकाला है, जो कि एक अच्छा फिगर है। इसका मतलब ये है कि हमने बहुत सारे लोगों को टीबी ट्रांसमिट होने से बचा लिया। WHO की हदायत पर टीबी मरीज के साथ इसके अहले खाना को भी टीबी की अद्वियात देने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद यासर कहते हैं कि टीबी के मर्ज में मुब्तला अफराद का 6 माह और अहले खाना को बीमारी से बचाव के लिए 3 माह का कोर्स करवाया जाएगा। टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी को शुरू किया जा रहा है। उसका मतलब ये है कि जो लोग टीबी पॉजिटिव है वो और उनके अहले खाना, एक स्पेशल कोर्स है 3 महीने का, वो हर हफ्ते मेडिसिन लेंगे, जिससे उनके अहले खाना जो है वो टीबी एक्वायर करने से बच सकते हैं। साल 2022 में 16,339 मरीज टीबी के रिपोर्ट हुए थे। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। मौसमियाती तब्दीलियों से फसलों की पैदावार भी मुतासर। अयूब रिसर्च सेंटर फसलों की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक। फसलों, सब्जियों, दालों, फलों और चारा जात के साथ 105 नए इकसाम के बीज मुतारिफ करा दिए। मौसमियाती तब्दीलियां फसलों के लिए भी तबाहकुन। फैसलाबाद में अयूब रिसर्च सेंटर फसलों की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए सरगर्म। ज़राअत को जदीद तहकीक से आलमी तकाज़ों से हम आहंग करने का फैसला। ज़राई साइंसदानों ने रोड मैप तैयार कर लिया। ज़राई तहकीक में जिद्दत के लिए नई पॉलिसी मुरतब की जा रही है। पंजाब हुकूमत मौजूदा दौर के चैलेंजेस से नंबरद आज़मा होने के लिए खती रकम फराहम करेगी। ज़राई तहकीकी काविशों के नतीजे में अब तक मुख्तलिफ फसलों, सब्जियों, दालों, फलों और चारा जात की 705 नई इकसाम के बीज मुतारिफ करा दिए गए, जिससे मईशत को सालाना 2,000 अरब रुपए का फायदा हो रहा है। बेहतर मैनेजमेंट के जरिए प्री बेसिक और सर्टिफाइड सीड की पैदावार 65,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 4 लाख किलोग्राम हासिल है। वीर पंजाब सीड कारपोरेशन के अलावा 500 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को फराहम किया जा रहा है। कैमरामैन ईमान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद।